चलो शुरू करें. What are we learning? We are learning costing. Sometimes we call it cost accounting. So what is costing? It's the simplest, the easiest meaning of the word costing is to find the cost of a product or a service. So I hope you understand what is costing for all practical purpose. Find out the cost of a product or a services. So what are we going to do? We are going to find out cost of a product or a services. कैसे? हम लोग ये सब कैसे करने वाले हैं? The answer is very simple. So हमारे लिए बताइए कॉस्टिंग क्या है? अभी अभी मैंने बताया आपको कॉस्टिंग मीन्स, बताओ, फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है. ना ये जो कॉस्ट हम फाइंड करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, that we will find out in terms of material cost, in terms of labor, employee cost, material, labor and expenses. तो ये जो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस है, आई कॉल इट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. So material, labor and expenses, I call it element of cost. Let's see, जो benches पर आप बैठे हैं उसकी cost find करना है. I want to find out the cost of a benches. Just visualize, see this picture very carefully. और बताइए हम लोग ये cost of benches कैसे find करेंगे. देखो देखो ठीक से, ये कॉस्ट ऑफ बेंचेस कैसे फाइंड करेंगे. मुझे हमारे कॉलेज के लिए कुछ बेंचेस परचेस करनी थी, तो आई सॉ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर कि सम कारपेंटर इज सेलिंग द बेंचेस. तो मैंने उसको पूछा, भाई टेल मी द प्राइस ऑफ द बेंचेस. ठीक है. तो देखो कारपेंटर ने क्या बताया और मैंने क्या देखा. ध्यान से देखना, हम लोग ने इसमें क्या देखा. मुझे बेंचेस की कॉस्ट निकालनी है. ठीक है. तो मुझे क्या दिख रहा है, आई टेल यू. मुझे अंदर मटेरियल दिख रहा है. What material could you see? That wood and Sanmaika, steel, say 5,000. Then I can see the carpenter who has made it is labor, say 3,000. Police and other expenses, say 2,000. So I thought the benches will cost 10,000. Carpenter will add his, say 3,000 profit and he will sell me at 13,000. मैंने मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस का एस्टिमेट लगा दिया. दैट कॉस्ट 10,000. आई टोल्ड कारपेंटर यू मेक 3,000 प्रॉफिट एंड यू सेल मी एट से 13,000. बट यू नो व्हाट डिड ही से? उसने क्या बोला? नो नो नो, माय कॉस्ट इज मच मोर देन 13,000. आई कांट गिव यू एट 13,000. आई एम वंडरिंग. मैंने वापस से देखा, क्या मैंने कोई मिस्टेक किया है? वेल, क्या क्या दिख रहा है? वेल, आई कैन सी स्टील, मटेरियल, सनमाइका एंड ऑल 5,000. नो मिस्टेक. Carpenter who made his benches, the labor 3,000, no mistake. And other expense, painting and all other thing, Fevicol and all other thing, 2,000. So I thought the cost is 10,000. But the carpenter says, no, it costs much more than 10,000. I can't sell you at 13,000. So I'm wondering, ऐसा कैसे हो सकता है? I have made no mistake in material, labor and expense. But I am partly right. Carpenter is wrong. Carpenter is right. I am wrong. ये जो मुझे बेंचेस में दिखता है, what you can see, क्या आपको दिख रहा है ना बेंचेस के अंदर क्या दिख रहा है? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस. what you can see is only part of the cost and I call this as a direct cost. ये whatever you can see in the picture is only the part of the cost and that was only the direct cost. So याद रखना, that was a direct material, direct labor and direct expense. So remember one thing, cost of a bench will be not just the direct cost, which I can see very well, but he has incurred a lot of more expenditure which you cannot see in the benches. उसने बहुत सारा और expenses किया गया है जो आपको benches में नहीं दिख रहा है. जैसे कि these benches are made in the factory. तो पता है फैक्ट्री में रेंट होता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है, फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर होता है, फैक्ट्री एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है. इफ आई डोंट कंसीडर ऑल दैट कॉस्ट, मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. देन to do his business, there was office rent, there was office salary, printing, stationery, telephone. If I don't add all these in the cost, my cost will go wrong. Then उसने अभी भी advertisement किया, then he will distribute the product. So there is a selling and distribution cost also. I mean, if I don't consider all the cost, then my business will go wrong. So याद रखना, cost of a product is what? Now, what is the cost of a product? ध्यान से देखना, cost of a product is what?
not only the direct cost, हमारे बेंचेस में डायरेक्ट कॉस्ट क्या था पता है आपको? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर and direct expenses, plus all what you could not see in the bench but they are still incurred for these benches. जैसे कि मैंने बोला, the cost are incurred in the factory, the cost are incurred in the office, the cost are incurred in selling and distribution. All these indirect costs, all these indirect costs are known as overheads. So if I don't add overhead to my product, my cost will go wrong. So yaad rakhna, cost of a product means not only the direct cost, but also indirect cost, I mean overhead. Now, depending upon the place and the purpose for which these overheads are incurred, depending upon the place and the purpose for which these overheads are incurred, I give the name, I give the classification. So I call them factory overhead. If they are incurred in the factory, I call them office overhead. If they are incurred in the office, I call them office overhead, administration overhead. I call them selling and distribution overhead. If they are incurred for selling and distributing my product. That means, yaad rakhna, cost of a product is not just the direct cost, also indirect cost known as overhead. Depending upon the place and the purpose wherein this factory overhead, administration overhead and selling overhead are incurred, we classify them. आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के? कुछ एग्जाम्पल? या फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री पावर एंड मेनी मोर एक्सपेंसेस यू कैन थिंक ऑफ. क्या आप मुझे ऑफिस ओवरहेड का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? या ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, office assets depreciation, printing, stationery and many more expenses. क्या आप मुझे कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं? वेरी मच. सेलिंग के लिए क्या लगता है? एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, सेल्समैन सैलरी, सेल्स सैलरी. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू नो वी इनकर्ड कैरेज एंड ट्रांसपोर्ट आउट, कैरेज आउटवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश स्टॉक. सो अब बताइए कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट क्या होगा? अब बताइए कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट यू कैन सी, यू नो ये बेंचेस जो दिख रही है, इसमें जो दिख रहा है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है. इसमें जो दिख रहा है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है. बट इन एडिशन टू दिस डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, वी इनकर लॉट मेनी इनडायरेक्ट कॉस्ट. व्हाट वी कैन सी, what we can't see. जो indirect cost मुझे प्रोडक्ट के अंदर दिख नहीं रहा है, उसका पॉपुलर नेम इज व्हाट? ओवरहेड. Now, depending upon the place and the purpose wherein the overheads are incurred, I classify them as what? Factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. अब बताओ, what is the cost of the benches to the carpenter on which he will add the profit and sell me? अब सोच के आंसर दो. आंसर वेरी सिंपल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं ना, उसी का दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट. क्या नाम है? प्राइम कॉस्ट. The name is prime cost. So cost of benches क्या होगा हमारे लिए, कारपेंटर के लिए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट. फिर उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो मुझे कॉस्ट अप टू फैक्ट्री लेवल मिलेगा. ऑफ कोर्स फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन बाय डिफरेंट नेम. वन नेम इज ऑफ कोर्स फैक्ट्री ओवरहेड, अदर नेम इज WRKS, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. Administration overhead is known as office overhead, selling and distribution overhead. So cost of benches will be direct cost, that is prime cost, plus factory overhead. I get cost up to factory level, plus admin overhead. I get cost up to office level, plus selling and distribution overhead. I get the total cost. So yaad rakhna, cost of a product is just not direct material, labor, expense known as prime cost. Add factory level, factory overhead known as work overhead. We get the cost up to factory level, production level. Then add office overhead, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देन ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सो लेट्स राइट दिस स्टेटमेंट. इसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं. इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं कॉस्ट शीट. सो कॉस्ट शीट इज नथिंग बट द कॉस्ट स्टेटमेंट. आप खुद ही मुझे मदद करो, बोलो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वेरी राइट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस बोलो, लेबर बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस,
बताओ इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। अभी इसमें मुझे क्या ऐड करना है? ऑब्वियसली फैक्ट्री वाला कॉस्ट ऐड करना है। यू नो प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, ऑफिस एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। बराबर है? अब सुनिए, ये प्राइम कॉस्ट में मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करता हूं। फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? वर्क ओवरहेड। तो अब जो ये कॉस्ट मिलता है, आई कैन कॉल इट फैक्ट्री कॉस्ट, आई कॉल इट वर्क्स कॉस्ट, and I call it cost up to production level. Cost up to production level. अब कुछ भी नाम दो। अब इसी के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जो मुझे कॉस्ट मिलता है वो मेरा टोटल कॉस्ट है, इसको बोलता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑन दिस विल ऐड सम प्रॉफिट मार्जिन टू फाइंड अवर सेल प्राइस। मैं वो कारपेंटर की लैंग्वेज की बात करूं ना, कारपेंटर की बात, तो क्या बोलता है पता है वो मुझे? कारपेंटर देखो, वो बोलता है मेरे को मटेरियल कॉस्ट वॉज 3000, लेबर कॉस्ट वॉज 2000, एक्सपेंसिस मेरा 10,000 था। फिर क्या बोलता है पता है? कि आई हैड ऑल्सो इनकर्ड अ फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ 5000। फिर बोलता है मेरा 2000 रुपीज तो ऑफिस ओवरहेड है। फिर बोलता है मैंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह एक्सपेंसेस किया, वो भी 2000 है। सो बोलता है मेरा जो कॉस्ट है वो 19,000 है। बोलता है on this I'll make 5,000 rupees profit and I'll sell you one bench for 24,000. So initially I thought कि bench will cost me 10,000. That's incorrect. I was wrong. Carpenter was right. क्यों? क्योंकि in addition to 10,000 उसने फैक्ट्री का भी एक्सपेंस किया है, ऑफिस एडमिन एक्सपेंस किया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी किया है। On that he will add the profit to make me sales. Now this is one of the easiest form of cost sheet. अब मेरी बात सुनना, ये जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, नोवेयर आई हैव कंसीडर्ड द स्टॉक। हमारे पास 3 टाइप ऑफ स्टॉक होता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होता है, एंड फिनिश स्टॉक भी होता है। कोई भी फैक्ट्री जब रनिंग होती है तो वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टॉक: रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस स्टॉक, एंड फिनिश स्टॉक। सोच के आंसर दो, मैं ये रिस्पेक्टिव स्टॉक कहां लिखेगा? आंसर बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल का स्टॉक तो रॉ मटेरियल में होता है, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के अंदर होता है, एंड जो फिनिश स्टॉक है इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन होता है, इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन होता है। ओके, सुनिए मेरी बात। वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टॉक: रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, एंड फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक कहां होता है? फिनिश स्टॉक कहां होता है? ऑब्वियसली आफ्टर प्रोडक्शन होता है। वर्क इन प्रोग्रेस कहां होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। एंड रॉ मटेरियल स्टोर रूम में होता है। तो याद रखना, वी विल हैव 3 स्टॉक। सो यही कॉस्ट शीट को अभी मैं डिटेल्ड कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में लिखने वाला हूं, विथ 3 स्टॉक: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, and finished stock. Of course, for each one of them, raw material, work in progress and finished stock, I may have opening stock, I may have a closing stock. तो देखते हैं, अब यही कॉस्ट शीट को हम डिटेल्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। सो आई विल से name of the firm, cost statement. Cost sheet is a cost statement, cost sheet for the period जो भी है। मेरी प्रोडक्शन कितना है, नंबर ऑफ यूनिट, ये कॉस्ट शीट कितना यूनिट के लिए है। ठीक है, फिर जब हम लोग एक्चुअल फॉर्मेट बनाते हैं ना, वी मे हैव सम टाइम इनर कॉलम आउटर कॉलम भी बनाते हैं। लाइक आई मे हैव इनर कॉलम, देन आई विल हैव अ टोटल कॉलम एंड पर यूनिट कॉस्ट। जब कॉस्ट शीट का एक्चुअल फॉर्मेट बनाते हैं तब इस स्टाइल से बनाते हैं कि आई विल हैव अ इनर कॉलम, देन मेरी टोटल कॉस्ट कॉलम है, टोटल कॉस्ट कॉलम, एंड पर यूनिट कॉस्ट। ये मेरी टोटल कॉस्ट, ये पर यूनिट कॉलम, ये तो इनर कॉलम है। देन देयर इज अ पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट यही है जो आपने अभी भी नोटबुक में लिखा है। टू मेक बेटर यूज आप ये फॉर्मेट लिखिएगा। डायरेक्ट कॉस्ट याद करो, क्या था डायरेक्ट कॉस्ट में?
पहले तो डायरेक्ट मटेरियल, बरोबर है। अब मुझे इसके अंदर एज आई सेड मुझे रॉ मटेरियल भी लेना है, तो देखो अभी मेरा डिटेल्ड फॉर्मेट क्या बनता है। इन द डायरेक्ट मटेरियल आई विल से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब चाहे तो मैं अमाउंट ऐसे ही लिखते जा रहा हूं, जस्ट लाइक दैट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन आई विल परचेज सम मटेरियल, I will say purchase some raw material. Say I've purchased a material of 1,10,000, amount मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं. Then I have to bring that material in the factory. So I will say carriage inward. And there was some unused material at the end. क्या बोला मैंने? There was some unused material at the end. Just एक मिनट मैं जरा लाइन ड्रॉ कर देता हूं. Unused material को हम क्या बोलते हैं? Closing stock of raw material. So less क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको भी ये लिखते जाना है। से मैं अमाउंट ऐसे लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 7,000. सो हाउ मच इट इज नाउ? 1,11,000. इससे मैं बोलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो मैं एज ए स्टूडेंट हमेशा सिर्फ यही याद रखता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ प्राइम कॉस्ट, दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट। लेकिन आई टोल्ड यू बिफोर कि वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक रॉ मटेरियल में प्लस माइनस होगा, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में प्लस माइनस होगा, फिनिश स्टॉक प्रोडक्शन के बाद प्लस माइनस होगा। तो बताइए अभी डिटेल्ड कॉस्ट शीट फॉर्मेट मैंने कैसे याद रखा है? आंसर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल plus carriage inward to bring that material in the factory minus closing stock of material, I get raw material consumed. अब obviously I'll add direct labor, amount में ऐसे लिखते जा रहा हूं, I will add direct labor and I will add direct expenses. याद करिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? यू आर वेरी राइट, ये होता है प्राइम कॉस्ट, ये होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब याद करिए, टू द प्राइम कॉस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड? बिल्कुल सही, to the prime cost we will add factory overhead, after that administration overhead, after that selling and distribution overhead. However, because I am making a detailed cost sheet format, at appropriate place I'm also going to consider closing and opening stock. We have 3 type of stock: raw material, WIP, finished stock. Raw material stock comes in the material, work in progress stock comes in the factory, and finished stock comes after the production. So अभी मैं बताएगा add, बताइए फॉर्मेट के हिसाब से आफ्टर द प्राइम कॉस्ट हम क्या ऐड करेंगे? बिल्कुल सही, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। आप कुछ मुझे एग्जांपल बता सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के? ओ या लाइक यू नो फैक्ट्री का मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री मशीन का इंश्योरेंस, देयर बी एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर होगा, उसका एक्सपेंसेस होगा, and all these expenditure, factory rent, factory insurance, factory power, they're all known as factory overhead. तो मैं अमाउंट ऐसे ही ऐड कर देता हूं, से मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 है। My factory overhead is 80,000 rupees. Okay, so I'll put actually the detail. फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी डिटेल है ना, ऑल एक्सपेंसेस, वो सब मिलकर सपोज मेरा 80,000 हो गया। My factory overhead is 80,000. My factory overhead are 80,000 rupees. ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड इधर ही ऐड कर देता हूं, से हियर फिर बाहर की कॉलम में, तो ये जो 220 आया ना, वो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट है। फैक्ट्री कॉस्ट का ही दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट है। सो आई कॉल इट फैक्ट्री कॉस्ट, आई कॉल इट वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, वर्क्स कॉस्ट बोलो, कोई कोई लोग इसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। व्हाई द वर्ड ग्रॉस? क्योंकि इफ यू रिमेंबर, अभी भी मुझे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करना है, ऐड करना है। सो आई से ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से 60,000 लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस।
ओके, अभी जो मेरा आंसर आया 230, उसे ही मैं आइदर आई कॉल इट अ नेट वर्क्स कॉस्ट, या तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या तो कभी कभी नेट वर्ड मैं लिखता भी नहीं हूं। क्या बोला मैंने? नेट वर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है। द वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट बाय डेफिनेशन इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बताइए जरा फॉर्मेट मैंने कैसे किया, ये जरा फास्ट फास्ट बताओ। देखो, हाउ वी स्टार्टेड विथ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल कैसे आया? ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेस ऑफ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड टू ब्रिंग दैट मटेरियल इन द फैक्ट्री माइनस क्लोजिंग मटेरियल, अनयूज्ड मटेरियल, आई गेट मटेरियल कंज्यूम्ड। टू दैट ऐड लेबर, ऐड एक्सपेंसेस, आई गेट द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो। जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है, चाहे तो आप उसे फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, चाहे तो वर्क्स कॉस्ट बोलो, मगर क्योंकि मैंने अभी तक WIP का स्टॉक नहीं लिया है, आई कॉल इट अ ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। व्हेन आई ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, व्हेन आई माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, नेट वर्क्स कॉस्ट है, उसको कभी कभी नेट वर्ड ना बोलते हुए यू कॉल इट जस्ट फैक्ट्री कॉस्ट, यू कॉल इट जस्ट वर्क्स कॉस्ट। अब सोच के आंसर दो। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने वाला हूं। आई रिपीट, वैसे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने वाले हैं, बट बिफोर दैट फ्यू कुछ स्पेशल कॉस्ट है, या देख लेते हैं कुछ स्पेशल कॉस्ट। यदि क्वेश्चन में दिया है तो ही हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यदि नहीं दिया है तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दे आर क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस। You know, mother production ka quality control is very, very important. All these expenditure are given, then only we will have to write. Then research and development related to production process. यदि पेपर में दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हम यहां लिखेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। अरे भाई, प्रोडक्शन के लिए कुछ एडमिन एक्सपेंस होता है तो फैक्ट्री में ही होता है ना, भले नेम एडमिनिस्ट्रेशन है, बट क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड है, प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो वो भी यहां ऐड करेंगे। ऐड प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मतलब, अरे भाई जिसमें हमको मटेरियल स्टोर भी तो करना है ना, दैट पैकिंग। हमने मटेरियल बनाया, बाद में बेचने के पहले पैक तो करेंगे ना, दैट प्राइमरी पैकिंग। कंटेनर जिसमें बोलते हैं, जिसमें आप लोग ऑयल रखेंगे। ओके, सपोज ये सब एक्सपेंडिचर, सपोज ये सब एक्सपेंडिचर मेरा 1 लाख है, जैसे ऐसे ही बोल रहा हूं। कभी कभी हम फैक्ट्री में से कुछ स्क्रैप भी तो बेचते हैं, वेस्टेज भी बेचते हैं फैक्ट्री में से 20,000। तो ये जो 5 आइटम्स है, दैट कॉस्टेड मी 80,000। और अब ये जो आंसर आया, इसे मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज ये 5 आइटम नहीं है, ये 5 आइटम नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस आपको लिखते जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटेड टू other production overhead and production and admin overhead, but production related. Primary packing, less scrap sold. Why less scrap sold? अरे भाई, मैं कुछ वेस्टेज बेच दिया। इंडिया में तो आपको पता है सब कुछ बेचा जाता है, तो इनकम होता है, तो मैंने माइनस कर दिया। सो क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन टाइप का एडमिन ओवरहेड, प्राइमरी पैकिंग, वो सब एक्सपेंसेस 1 लाख हो गया। एंड देन आई गॉट सम इनकम बाय सेलिंग स्क्रैप 20, तो मेरा नेट एक्सपेंस 80 हो गया। ऑलरेडी मेरा वर्क्स कॉस्ट 230 था, प्लस दिस 80 बिकम्स 310। इसको बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वापस से बताइए कैसे याद रखा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट है। बट याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल इटसेल्फ कैसे बनता है? अरे भाई, वी हैव ओपनिंग मटेरियल, देन वी परचेस सम मटेरियल, वी ब्रॉट दैट मटेरियल इन द फैक्ट्री, माइनस अनयूज्ड मटेरियल, आई गेट मटेरियल कंज्यूम, देन लेबर, देन एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, देन ऑल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने पर जो वर्क्स कॉस्ट मिलता है, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, उसको हमने वर्ड किया है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। व्हाई द वर्ड ग्रॉस? क्योंकि अभी ऑलरेडी हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी तो कंसीडर करना है, तो मेरी ग्रॉस वर्क कॉस्ट 220 है। इन एडिशन टू दैट आई ऑलरेडी हैव 60,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एंड देन ऑफ कोर्स सम अनयूज्ड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो नेट वर्क्स कॉस्ट है, कभी कभी नेट न बोलते हुए इसे वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ही बोलते हैं। अब उसमें 5 स्पेशल कॉस्ट ऐड करते हैं, 5 स्पेशल ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं, बट वो सब प्रॉब्लम में नहीं है। ओनली जब क्वेश्चन में होता है तो देखते हैं, दे आर क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, then there are administration expense but related to production, and then there is a packing container cost,
कुछ स्क्रैप बेच दिया तो दैट्स माय इनकम, दैट विल रिड्यूस माय कॉस्ट। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, अब सोच के आंसर दो। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अभी भी नॉर्मल ऑफिस ओवरहेड बाकी है, नॉर्मल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बाकी है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। आपको ये वीडियो देखना नहीं है, ये वीडियो लिखना है। देखो, लेट्स कम बैक हियर। देखो हमारा ये पता है ना, कॉस्टिंग मींस फाइंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कॉस्टिंग मींस फाइंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा प्राइम कॉस्ट था। उसमें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड, जो कॉस्ट हमको प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा था, व्हाट वाज नॉट विजिबल इन द प्रोडक्ट, जिसे हम ओवरहेड बोलते हैं, वो भी ऐड करना है। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस एंड द पर्पस वेयर दिस ओवरहेड्स वे इनकर्ड, वी क्लासिफाई देम आइदर फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड, ऑफिस और एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो ये हमारा प्राइमरी फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट है। विद दैट आई ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, आई गेट कॉस्ट अप टू फैक्ट्री प्रोडक्शन लेवल, देन आई ऐड एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड। बट ये जो बेसिक कॉस्ट शीट फॉर्मेट है, मैं एज ए स्टूडेंट सिर्फ यही फॉर्मेट याद रखता हूं। फिर मैं क्या याद करता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टॉक आई हैव टू कंसीडर अप्रोप्रिएटली। रॉ मटेरियल है तो आई कंसीडर इन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस है तो फैक्ट्री में, फिनिश स्टॉक है तो प्रोडक्शन के बाद। सो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में आई से ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल में ऐड ओपनिंग मटेरियल लेस क्लोजिंग मटेरियल, प्रोडक्शन के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक। दिस इज हाउ आई रिमेंबर माय फॉर्मेट। अब हम चलते हैं डिटेल्ड फॉर्मेट पर। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस है। So we have direct material में opening material plus purchase of material plus bring that material in the factory, carriage inward minus unused closing material। अमाउंट में ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ। Then I have got wages and expenses, I get prime cost, to the prime cost add factory overhead। तो आंसर आता है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। ओके, लेकिन वो फैक्ट्री कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट है, उसे हम ग्रॉस बोलते हैं, क्योंकि देन वी हैव टू एडजस्ट फॉर द स्टॉक। सो ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। नेट वर्क्स कॉस्ट को ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, नेट बोलने की भी जरूरत नहीं है, इट्स अ वर्क्स कॉस्ट और a factory cost। Then five special transaction, if they are there in the paper, we have to consider, otherwise just forget it। They are quality control expense, they are research and development expenditure, they are admin overhead but related to production, they are primary packing, and if there is some income by of sale of scrap from the factory, तो यहाँ से माइनस कर दो, फैक्ट्री स्क्रैप सोल्ड, ये है फैक्ट्री स्क्रैप सोल्ड। आई गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब समझो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सपोज ये मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स है, क्या है, यूनिट कॉलम, एंड आई प्रोड्यूस 10,000 यूनिट। जस्ट समझने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं पर यूनिट मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? ऑब्वियसली 31 रुपीज है। ओके, जस्ट समझने के लिए। अब मुझे इसी के अंदर एड ओपनिंग फिनिश स्टॉक लेस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक करना होता है। इफ आई हैव अ फिनिश स्टॉक, इट विल ऑब्वियसली कम आफ्टर प्रोडक्शन, सो आई से एड ओपनिंग फिनिश स्टॉक। सपोज आई ऑलरेडी हैड 3000 ओपनिंग फिनिश स्टॉक, आई ऑलरेडी हैड, पेपर में दिया था। ओके, आई ऑलरेडी हैड, और उसकी कॉस्ट थी 32 रुपीज। जस्ट ऐसे ही अमाउंट लिख रहा हूं, डोंट वरी अबाउट द अमाउंट। तो अभी देखो, आई हैड प्रोडक्शन ऑफ 10,000, ये यूनिट कॉलम बना दिया अभी हियर। सो मेरे पास अभी 13,000 यूनिट हो गया, एंड मेरी कॉस्ट हो गई 4,06,000। आई प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, आई प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, I produced 10,000 unit. I produced 10,000 unit at a 3,10,000 total cost. Total cost divided by number of units 31. और पेपर में हमें दिया था, we already had 3,000 का ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास ऑलरेडी 3,000 का ओपनिंग स्टॉक था। That cost was 96, पेपर में दिया है। That means आप बता सकते हैं अभी हमारे पास टोटल कितने यूनिट हो गए, 10 plus 3 30, and my total cost is 310 and 96। ये जितना भी 13,000 है, जस्ट मैं एज्यूम करता हूं इसमें से 4,000 आई डिड नॉट सेल, सो आई कॉल इट अ क्लोजिंग फिनिश स्टॉक। 4,000 यूनिट है। ऑब्वियसली आप खुद ही बताओ 4,000 यूनिट को वैल्यू क्या करेगा एट माय करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 31, सो मेरा कॉस्ट हो गया 1,24,000।
1,24,000. सो आप सोच के बताओ, व्हाट इज दिस 9,000? ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है. दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड. और ये प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी है? ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो गुड्स बेचा उसकी है. सो दिस इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और इसे टेक्निकली ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोलते हैं. इतना लंबा नाम नहीं बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसकी कॉस्ट हो गई 2,82,000. 4,06,000 माइनस 124. सो उसको बोलते हैं आइदर. मैं एज ए टीचर, मैं एज ए स्टूडेंट हमेशा उसे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलता हूँ, बट बाकी सभी टीचर उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं. आई एम ओके विद दैट. अब इसे मैं मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेगा, क्योंकि ये तो सब अभी फैक्ट्री लेवल तक का था. ये जो मेरा नॉर्मल ऑफिस ओवरहेड होता है ना, ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस ओवरहेड, वो ऐड कर देंगे. अमाउंट मैं ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ. से इसका अमाउंट है 28,000. फिर मेरे पास कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेगा, से 40,000. 40,000. अब जो आंसर आएगा, ये मेरी टोटल कॉस्ट है. इसे बोलता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स. 3,50,000. सपोज इसमें मैं 50,000 रुपीज प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, अर्न करने वाला हूँ. तो पता है ये प्रोडक्ट मैं कितने में बेचने वाला हूँ मार्केट में? 4 लाख रुपीज. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स. तो आपको ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सही तरीके से याद करना है. मैं एज ए स्टूडेंट कैसे याद करता हूँ, आई टेल यू. मैं तो सिर्फ इतना याद करता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट, कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको ये लिखते जाना है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट होता है. उसे मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने वाला हूं. मुझे फैक्ट्री प्रोडक्शन लेवल तक का कॉस्ट मिलता है. देन आई ऐड एडमिन ऑफिस ओवरहेड, देन आई ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. मैं सिर्फ इतना याद करता हूं, ये फॉर्मेट याद करता हूं. फिर मैं क्या बोलता हूं? फिर मैं ऐसे बोलता हूं कि एट द रिस्पेक्टिव प्लेस मुझे स्टॉक लेना होता है. द 3 टाइप ऑफ स्टॉक. रॉ मटेरियल. कौन सा 3 टाइप ऑफ स्टॉक है? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश स्टॉक. रॉ मटेरियल मटेरियल में होता है, WIP फैक्ट्री में होता है, और फिनिश स्टॉक प्रोडक्शन के इमीडिएटली बाहर होता है. तो ये जो मटेरियल है उसमें मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल, परचेस ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल करेगा. जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसी में ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP. प्रोडक्शन के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक. तो देखो यही फॉर्मेट को मैंने वापस रीराइट किया. अमाउंट मैं ऐसे लिखते गया हूं. Name of the firm, cost sheet for the year, for how many unit produced, direct material, opening material, purchase of material, carriage inward minus closing material. I get material consumed. Then there is a labor and expense, I get prime cost. उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट मींस फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है. बट आई कॉल इट अ ग्रॉस. व्हाई आई कॉल इट अ ग्रॉस? क्योंकि WIP की इफेक्ट देनी बाकी है. सो ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP. आई गेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट. कभी कभी नेट बोलो या मत बोलो, इट मेक्स नो डिफरेंस. देन 5 आइटम, स्पेशली आइटम है तो ऐड करने का, अदरवाइज यू जस्ट फॉरगेट. विच आर दे? क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, expense related to production overhead, means admin overhead related to production, primary container and all, less factory scrap sold. वो एड लेस करने के बाद जो आंसर आता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. यदि दिस आइटम्स आर नॉट देयर तो फिर वर्क्स कॉस्ट ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. नाउ ये भी ये इनर कॉलम में मैं यूनिट कॉलम बना देता हूं. So I'm just assuming 10,000 units were produced at a cost of 3,10,000. That means total cost 310 divided by 10,000, I get 31 rupees per unit. सो अभी मेरे पास ऑलरेडी फैक्ट्री में पहले से ओपनिंग फिनिश स्टॉक 3,000 यूनिट है एट द कॉस्ट ऑफ 32 और 96 है. सो 10 प्रोड्यूस प्लस 3 पहले का ओपनिंग स्टॉक. आई हैव 13,000. आई सोल्ड ऑल द गुड्स बट ओनली आई डिड नॉट सेल 4,000 यूनिट. Now this 4,000 unit I'm going to value at current cost of production 31 rupees. So 13,000 minus less unsold, I get cost of goods sold. I call it a production cost of goods sold or just cost of goods sold. Add admin overhead, सेलिंग ओवरहेड, आई गेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो आपको ये फॉर्मेट सही तरीके से याद रखना है. आई एम श्योर यू कैन डू वेल. ओवरऑल इसके नीचे मैं कुछ नोट लिखता हूं. क्या है ये नोट? सर्टेन आइटम्स आर नॉट कंसीडर्ड
as part of cost. Hence, while preparing cost sheet, they are ignored. They are ignored. क्या है मतलब कुछ आइटम को हम कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं समझते हैं. सो कॉस्ट शीट बनाने में while finding out the cost of a product, we simply ignore. What are they? Goodwill written off. Preliminary expenses written off. Interest. So interest paid on the loan taken, interest received on the investment. Donation. Income tax. Then purchase of fixed asset. क्योंकि परचेज ऑफ फिक्स असेट तो बैलेंस शीट असेट आइटम है ना. हाँ, इसका डेप्रिशिएशन हम लोग लेते हैं. हाँ, सपोज वो ऑफिस असेट है तो ऑफिस ओवरहेड में लेते हैं, फैक्ट्री की असेट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट असेट तो सेलिंग ओवरहेड में लेते हैं. डेप्रिशिएशन लेते हैं. असेट इटसेल्फ इज एन असेट, बैलेंस शीट आइटम है, वो एक्सपेंस भी नहीं है. एंड अबाउट द बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए दो ओपिनियन दिया जाता है. फ्यू पीपल consider that selling overhead. More you sell, more bad debts. It is certain percentage of sales, but few people call it a finance item, so they are not taken in cost sheet. उसे purely finance item बोला जाता है. So दोनों treatment acceptable होता है. Few people call it a selling overhead, few people call it a finance item. आप जो भी एग्जाम में while preparing a cost sheet assumption लेते हैं लिखो, but हमारी कॉलेज में हम लोग ने इसे फाइनेंस आइटम लिया है. सम कॉस्ट शीट में नहीं लिखेंगे और नॉट लिख देंगे कि बैड डेट इज कंसीडर्ड एज ए फाइनेंस ओवरहेड. ऑलराइट, सो विद दैट बैकग्राउंड मैं चाहता हूं आप ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बाय हार्ट कर दो. नॉट ओनली दैट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बाय हार्ट कर दो, आप नॉट ओनली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बाय हार्ट करो, व्हाट आई वांट यू राइट डाउन प्रॉपर्ली और बाद में एटलीस्ट 1 और 2 कॉस्ट शीट के सम करो. जब आप कॉस्ट शीट के सम करेंगे तो एक एक्सपर्टाइज डेवलप होगा, एक प्रोफिशिएंसी डेवलप होगा. आप पक्का हमारा नेक्स्ट वीडियो देखो जिसमें 1 और 2 सम हमने किया. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.